ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जियो, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। इस प्रकरण दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हुए तमाम जीव जंतुओं का पशु पंछियों का जो नाम आया है, जिन्हां दी गुण अवगुण दी विचार सतगुरां ने साडी झोली च पाई है। पिछले कई दिनों तो आप सरवण कर रहे हो। आओ अज गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हुए पावरे दी विचार जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे 24 नंबर अंग तो आरंभ होंदी है। सतगुरां ने पावरे दा नाम 8वें नंबर ते दर्ज किया है। कुछ विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे 24 नंबर अंग दे उत्ते महाराज ने पवरे का जिक्र किया है। पवर उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों बूझे जा नह बुझाई। पवरा जिहड़ा है काले रंग का एक जिस तरह पूंड होंदे न, इस तरह का एक थोड़ा पूंड तो वड्डा जीव है। शरीर इसका सारा काला हुंदा है। जिहड़ी इसका मूँह है, जिहड़ी खोपड़ी है इसकी अगे, वो पीले रंग की हुंदी है। पवर अक्सर फुल्लां दे उत्ते मंडरांदे हुए असी देख सकते हाँ। इसदा फुल्लां दे नाल बहुत प्रेम है। इसदा फुल्लां दा रस चूसना यही इसदी खुराक है। पौरे दे विच ताकत काफ़ी होंदी है। इहदे पर छोटे होंदे ने लेकिन शरीर वड्डा होंदा है। बहुत तेज़ी नाल अपने पंखां नूं चला के अपने भारी भरकम शरीर नूं उड़ा लैंदा है। वैसे कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस नूं उड़ना नहीं चाहिए है, क्योंकि शरीर इसका भारा होंदा है, पंख छोटे होंदे ने। पर मेहनत करता है, कोशिश करता है तो अपने शरीर नूं उड़ा लैंदा है। इहदे अंदर ताकत बहुत होंदी है।
ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੰਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਵਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਾਫੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਜੈਸੇ ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਵਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਭੰਵਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਵਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਭੂਲੋ ਪਰਮਸ ਭਵਰ ਤਾਰ, ਬਿਲ ਬਿਰਖੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁ ਵਿਕਾਰ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੰਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੰਵਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੰਵਰਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭੰਵਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚੇਤਰੇ ਮਨ, ਮਰੇ ਭੰਵਰਾ ਕਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੇਤਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੇ ਭੰਵਰਾ ਕਾਲਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ
ਭंवरा नहीं टिकदा है, कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते कदी उस फुल ते। हर वक्त भंवरा काला होंदा है, मन साडा भी काला है। इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। भंवरा काला है साडा, ये मन भी काला है। भंवरा थां थां ते भटकदा फिरदा है, मन साडा भी भटकदा फिरदा है। ये टिकदा नहीं है। वख वख फुल्लां दा रस लैंदा है भंवरा, मन भी वख वख रसां दे विच फस के हर वक्त जो है ये भटकदा फिरदा है। भंवरा उड़दा फिरदा है, मन भी उड़दा फिरदा है। भगत कबीर साहब ने इस वास्ते ही कह दिता है कि कबीर मन पंखी भयो, उड़ उड़ दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। भंवरा जिस फुल ते बहंदा है उहदा रस पींदा है, मन जिस विकार विच फस जांदा है उहदा रस लैंदा वे। इस वास्ते इस भंवरे नूं आख्या ते आवारा ही होंदा बई, मन भी साडा आवारा ही होंदा है। भंवरे नूं भी आवारा मन्निया गया है। जिसे कई आशिक मन होंदे ना, आवारा ही होंदे ने। वो भंवरा भी आवारा होंदा है, वख वख फुल्लां दा रस लैंदा है। मन भी साडा आवारा ही है। ये वख वख पदार्थां दे, सुखां दे विच, विकारां दे विच, पापां दे विच फस के ये वख वख रस लैंदा है। इस वास्ते एक शायर ने बड़ियां सोहणियां पंक्तियां लिखियां हन कि चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास। चंपा चमेली दा जिहड़ा फुल होंदा है ना, बड़ा सोहना फुल होंदा है, खुशबू भी होंदी है उहदे विच, बड़ी दूर दूर तक उहदी खुशबू जाती है। चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास। एक अवगुण क्यों तुझ में, भंवर न बैठे पास। माली ने फुल कोलों पुछ लिया भी तेरे कोल रूप भी है, सुगंध भी है, खिड़ाओपन भी तेरे कोल है, तू खिड़िया होया भी है, पर तेरे कोल भंवरा क्यों नहीं बहंदा। ऐसा मन्निया जाता है कि भंवरा जिहड़ा है वो चमेली दे फुल दे उत्ते, चंपा दे फुल दे उत्ते नहीं बहंदा है, बाकी सारे फुल्लां दे उत्ते बहंदा है। कवियां ने फिर इहदे विचों जो तत्त कढ़िया है, चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास। एक अवगुण क्यों तुझ में, भंवर न बैठे पास। पर तेरे उत्ते भंवरा क्यों नहीं बहंदा है, पुछ लिया। फिर फुल ने जो जवाब दिता है, माली ने पूछया भी भंवरा तेरे कोल क्यों नहीं बहंदा, ते फुल ने जो जवाब दिता ना, बड़े ध्यान नाल उसनूं सुनना है। साजन मुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास। ठौर ठौर के नीत को कौन बिठावे पास। मेरे कोल रूप भी है, सुगंध भी है, पर ये जिहड़ा भंवरा है ना, इहदे चाल चलन ठीक नहीं, इहदी नीयत ठीक नहीं है। ये थां थां ते भटकदा फिरदा, कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते, कदी इत्थे कदी उत्थे। तो चंपा कहती है भी मैं इस तरह दे आवारा नूं अपने कोल बहन ही नहीं देंदी हाँ। साजन मुझ में तीन गुण, रूप रंग अरबास। ठौर ठौर के नीत को कौन बिठावे पास। इस आवारा नूं अपने कोल कौन बिठावे, मैं तो नहीं बिठांदी इसनूं। मन नूं भी आवारा ही मन्निया गया है। ये मन हर वक्त भटकदा पिया है। कदी अखां दे राही ये बाहर निकल जाता है, कदी नासका दे राही बाहर निकल जाता है। जिथे खुशबू आंदी है उत्थे ही चला जाता है।
किधरे थोड़ा जा रूप वेखिया अखां दे राही निकल के उत्थे चला जाता है। जुबान दे स्वाद दे राही निकल के उस स्वाद भी चला जाता है। अखां हर वक्त कुछ न कुछ नया रूप लभदियां ने, जैसे भंवरा नित नवें फुल लभदा वे। मन भी इस तरह ही आवारा हर वक्त कुछ न कुछ नवा वेखण वास्ते लभदा पिया वे हर वक्त। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हौं तिसके बल जाई। पाप पुण्य की सार न जाने भूला फिरे अजाई। ये जिहड़ा मन है ना, ये पाप ते पुण्य की सार नहीं जानदा, भूला फिरे अजाई। ये अनजान बन के हर वक्त पाप पुण्य की सार ना जानद्या होया महाराज कहंदे ने हर वक्त भटकदा ही पिया वे। हर वक्त अखां कदी इस पासे चलियां जांदियां, कदी उस पासे चलियां जांदियां, कदी उस पासे चलियां जांदियां। दृष्टि दे उत्ते कोई बंधन भी नहीं है। अखां वेखदियां ने, उहदे वास्ते कोई कानून नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। कोई वेखदा ते वेखे पिया। कोई हत्थां नाल पाप करे, पैरां नाल पाप करे, उहदे वास्ते कुछ सज़ा है, कानून है, हथकड़ियां ने। पर अखां किसे दूजे दे घर भी चलियां जान, किसे दे तन ते चलियां जान, किसे दे तन ते चलियां जान, उहदे वास्ते कोई कानून नहीं है। इस वास्ते मन अधिकतर अखां दे राही हर वक्त भटकदा रहिंदा है। अखां पता नहीं कित्थे कित्थे चलियां जांदियां ने। मनुख अखां दे राही ही बहुते पाप कमा लैंदा है, क्योंकि इहदे वास्ते कोई सज़ा नहीं है, कोई कानून नहीं है इहदे वास्ते। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने, मैं उस तो सदके जांदा हाँ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, गलत सोचे, कोई कानून नहीं है इहदे वास्ते। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हौं तिसके बल जाई। मैं उस तो सदके जाना जेड़ा अपनियां अखां नूं बंधन पा लैंदा है, नहीं देखना है। किसे दे रूप ते ना जावे, किसे दे तन ते ना जावे, किसे दे तन ते ना जावे। मगर ऐसा होंदा घट ही है, अखां चलियां जांदियां ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह इस वास्ते सानू रोकदे ने भी अपनियां अखां नूं पहले काबू विच करो, मन फिर काबू विच होवेगा, बई नहीं देखना है किसी। इस घर में है सो जो तू ढूंढ खाए, और किसी के तू मत ही जाए। जो तेरे घर विच है, तेरा परिवार है, तेरी स्त्री है, धन है तेरा, कारोबार है तेरा, ज़मीन जायदाद है तेरी, जो कुछ भी तेरे कोल है वो तेरा है, वो तेरे भोगण वास्ते है। तो महाराज कहंदे ने, तू उस विच अपने मन नूं लगा जो तेरे कोल। इस घर में है सो जो तू ढूंढ खाए, और किसी के मत ही जाए। किसी दूजे दे घर विच ना जावे, अपने घर विच ही लभण दी कोशिश करे। मन नूं भी आख्या कि ये भंवरे की तरह है, उड़ उड़ दे दिस जाए। हर वक्त जैसे भंवरा नित नवें फुल्लां दे उत्ते बैठ के ते अपना जीवन बर्बाद करता है। महाराज कहंदे ने, किधरे साडा मन भी भंवरे की तरह ना बन जावे, एक किधरे मन की भी ऐसी हालत ना हो जाए।
गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भंवरे का एक गुण, बहुत वड्डा जो गुण है उसका, वो सतगुरां ने बयान किया है। जैसे कल आपने विचार श्रवण किया सी डड्डू का, मारू राग का जो शब्द है ना, दादर तू कभे न जानस रे पकस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। डड्डू जिहड़ा है वो सरोवर दे विच रहिंदा है पर कमल दी सार नहीं जानदा है, कमल दे फुल दा रस नहीं लैंदा, रहिंदा सरोवर दे विच है। पर सरोवर दे विच कमल दे कोल रह के भी डड्डू जिहड़ा है वो काई खांदा है, कीड़े मकोड़े खांदा है, वो गंदगी खांदा है, कमल दा अमृतमई रस नहीं लैंदा है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बस जल नित न वसत अली अल मेर चचा गुण रे। क्योंकि मरदाने ने पूछ लिया सी भी सच्चे पातशाह जी ये मेंढक डड्डू जिहड़ा है कमल दे फुल कोल रहिंदा है, ये रस नहीं लैंदा, तो पातशाह फिर रस लैंदा कौन है, आनंद लैंदा कौन है। महाराज कहंदे ने ओ वेख भंवरा जिहड़ा है उस सरोवर दे विच नहीं रहिंदा, दूरों चल के आया पर सरोवर वाल उसने तकिया भी नहीं है, वेख्या भी नहीं। सरोवर विच कितनी काई है, कितने कीड़े मकोड़े ने, डड्डू है, गंदगी है, भंवरा नहीं वेखदा है। सीधा ही आके ते कमल दे फुल दे उत्ते बह के रस लै के ते वापस चला जांदा है। सतगुर सानू समझाते ने, कई लोकी गुरुद्वारे आउंदे ने डड्डू की तरह रहिंदे गुरु दे नेड़े हन, पर उत्थे रह के भी गंदगी ही खांदे ने, उत्थे रह के भी विकारी होंदे ने। कई ऐसे गुरु के सिख ने जो भंवरे की तरह दूरों चल के आउंदे ने, गुरुद्वारा साहब दे अंदर की होंदा पिया की नहीं होंदा पिया उन्होंने कोई मतलब नहीं होंदा। गुरु दा शब्द सुनते ने, रस लैंदे, आनंद लैंदे, वापस चले जाते हैं। तो कई तो आके इत्थे यही वेखते रहते ना भी यह लाइट बंद नहीं की है, पखा बंद नहीं किया है, ज्ञानी ने की कर दिता वे, वो फलाना मूँह किस तरह बनाता पिया, फलाने ने कपड़े किस तरह के पाए ने, एक दूजे नाल निंदा चुगली करन ते समा बर्बाद कर देंदे ने। सिख ने बनना है उस भंवरे की तरह जो दूरों आके कमल का रस लैके आनंद लैके वापस चला जाता है, ऐसा बनना है। भंवरा जिहड़ा है रस लैंदा है कमल दे फुल दा, लेकिन भंवरे दे विच एक अवगुण भी है। भंवरा कमल दे फुल दा रस लैंदिया होया इतना मगन हो जाता है, शाम पै जाती है, कमल दा फुल बंद हो जाता है, सारी रात फिर विच तड़फदा रहिंदा है, सारी रात ये भुल जाता है कि मैं वापस भी जाना है। भंवरा फूल पवंते, भंवरा फूल पवंतिया दुख अत भारी राम। भंवरा फूल पवंतिया दुख अत भारी राम। भंवरा जिहड़ा है फुल्लां दे उत्ते पाउंदियां होया अत दा दुख प्राप्त करता है। कितना दुख एक कमल दे फुल दे विच बंद हो जाता है, भुल जाता भी मैं घर भी जाना है, ये भुल जाता है। रात पै जाती है, हाथी आया, उन्हें सरोवर विचों पानी पीता, कमल दा फुल पकड़ के उन्हें पुट के सुट दिता है। कमल हुण खुलिया नहीं, विच ही बंद हो के भंवरे दी मौत हो जाती है, मर जाता है भंवरा। कमल हेत बिन स्यों है भंवरा, उन मार्ग निकस न पायो। जिहवा रोग मीन ग्रस आनो, बासन रोग भंवर बिन सन।
ਭੰਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗ੍ਰਸ ਆਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੋਗ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਧਨ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੂਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਰਸ ਗੁੰਫਿਆ, ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਏ ਬਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ। ਪੰਕਜ ਪਾਥੇ, ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਭੰਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਏ ਬਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਐਸਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਧਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ, 4 ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੂਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
वो जिहड़ा साधु मित्र सी बड़ा वो परेशान होया भी किधरे रात अगर इन्हां चूहियां ने इसनूं टुक दिता, रामायण की पोथी खराब हो गई, तो मैं की जवाब दियाँ अपने मित्र नूं। फिर उन्हें रखी अपनी हिफाजत वास्ते इत्थे, सारी रात उन्होंने लैके बैठा रहा किधरे चूहा कोई नुकसान ना करे। 2 दिन इस तरह ही निकल गए। अपने चेले कोलों पुछया भी ये तो मुसीबत गल पै गई है, भी हुण की करना चाहिए, चूहियां दा की इलाज है। उन्हें आख्या भी कोई वड्डी गल नहीं है, एक बिल्ली लै आओ, बिल्ली आएगी चूहे चले जाणगे। साधु एक बिल्ली लै आया, बिल्ली लिया के बन देती। कुछ चिर बाद बिल्ली ने बोलना शुरू कर दिता। चूहे तो चले गए पर बिल्ली बोलन लग पई। साधु ने पूछा भी ये क्यों बोलती है, क्यों रोंदी है। उन्हें आख्या भी ये दुध मंगदी है, इनू दुध पिलाओ। हुण रोज़ वो दुध लैण जांदा है, पिंड विचों दुध लिया के फिर उस बिल्ली का ढिड भरदा है। संत ने आख्या भी ये किहड़ी मुसीबत गल पै गई है, भी हुण इस बिल्ली का की करिए, इनू रोज़ दुध चाहिदा है। चेले ने आख्या भी एक बकरी ले आओ, घर विच दुध होएगा, असी भी पी लवांगे, भी पी लेगी। एक बकरी ले आंदी। बकरी का दुध होवे थोड़ा, ना बिल्ली का ढिड भरे ना अपना ढिड भरे। हुण की करिए। चेले ने आख्या गऊ ले आओ, गऊ का दुध ज़्यादा होंदा, तुसी भी पी लो, मैं भी पी लवां, ये बिल्ली भी पी लवे। गऊ ले आंदी तो गऊ वास्ते फिर रोज़ घाह कट के लियाना पैंदा सी, उहदी साफ सफाई करनी पैंदी सी, उहदा मल मूत्र साफ करना पैंदा सी। जितना वो नाम नूम जपदा सी वो सारा उसका रोज़ कटदा गया। चेले ने पूछया भी ये की मुसीबत गल पै गई है, हुण इसदा की इलाज है, भी मेरा तो सारा टाइम इसे विच ही खर्च हो जाता है। चेले ने आख्या तुसी ब्याह करा लो, घर वाली आ जाएगी, साफ सफाई करेगी, इहदा घाह पट्ठा भी पा देगी, दुध भी कढ़ लेगी, सारे काम हो जाएंगे। उस साधु ने ब्याह करा लिया, 2-4 उसके बच्चे भी हो गए, झोंपड़ी भी वड्डी कर ली। वो जिहड़ा मित्र गया सी यात्रा करन वास्ते वो वापस आ गया, तो देख के हैरान होया भी झोंपड़ी भी वड्डी हो गई है, वेड़ा भी बहुत वड्डा हो गया, तो गऊ बची हुई है, बच्चे घूमते पे ने। आके उन्हें अपने मित्र कोलों पूछया भी मित्रा मेरी रामायण कित्थे है, मेरी रामायण कित्थे है। वो जिहड़ा साधु मित्र सी कहंदा भी मित्रा ए देख लै सारी तेरी रामायण है, ये जो बच्चे घूमते पे ने, गऊ बजी हुई है, बिल्ली बैठी है, ये सारी तेरी ही रामायण है, जिन्हें मैनू फसा के रख दिता वे। चंगा भला मैं नाम जपदा सा, हुण वो भी नहीं आउंदा मेरे कोलों। इस तरह जो है मनुख जिहड़ा है ना, वो संसार दे विच दिनों दिन फसदा ही जांदा है, उन्होंने निकलण वास्ते फिर कोई रस्ता ही नहीं सुझदा है। महाराज सानू इत्थे सुचेत करदे ने भी किधरे ऐसा ना होवे कि तू भी इस भंवरे की तरह संसार रूपी कमल दे विच फस के अपनी जान गवा लवें, ते तैनू किधरे निकलण दा फिर रस्ता ही ना मिले। लेकिन भंवरे दा एक गुण है कि वह कमल दा रस लैंदा है। कमल दे रस तो बिना भंवरा जिहड़ा है वो रह नहीं सकता है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी इस तरह की विचार साडे सन्मुख रखते हैं कि हमरा मन बैराग बिरकत पयो हर दर्शन मीत के ताई, जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोहे हर बिन रहन न जाई। जिस तरह भंवरा कमल दे रस तो बिना रह नहीं ना सकता, गुरु रामदास महाराज कहते ने मेरा मन भी इस तरह ही गुरु दे दर्शनों तो बिना जो है वो रह नहीं सकता है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने भंवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावे, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दरस अघावे। जिस तरह भंवरे की प्रीत
कमल दे फुੱਲ नाल है ना, इसे तरह ही संत जन, गुरमुख जन, भगत जन वो गुरु दे दर्शनां दे विच इतनी प्रीति रखते हैं। भंवरा कमल दे रस विच पै के उस विच फस के अपनी जान गवा लैंदा है, पर जिहड़ा गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ जांदा है ना, गुरु दे चरण कमल रूपी कमल दे नाल जिस दी प्रीत लग जाती है ना, उसनूं नवां जीवन मिल जाता है। उन्होंने तो नवा जीवन मिल जाता है। बाणी कहती है मन सुमद कर करो, चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखों। ऐ मेरे मन, गुरु दे चरण कमल रूपी जेड़े कमल हैं ना, उहदे नाल प्रीत कर, परमेश्वर दे नाम दा रस मान, ताकि तेरा जीवन जेड़ा है ना वो सफल होवे। महाराज सच्चे पातशाह जी सानू असीस भी देंदे ने कि पवर तुम्हारा एह मन होवे, हर चरणा होए कवला। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंद है चातरक मौला। साडा ए मन पौरे दी तरह, पर उस पौरे दी तरह नहीं जो कमल दे विच फस के ते अपनी जान गवा लैंदा है। गुरु दे चरनां दे नाल साडी प्रीति वध जावे। गुरु दे चरनां दी प्रीत दे नाल नाम रूपी परमेश्वर दे नाम रूपी जो अमृतमय रस हन, असी उस दा स्वाद माण सकीए, नवा जीवन सानू प्राप्त हो सके। महाराज सच्चे पातशाह जी मेहर करन, इस तो पहले कि इस जिंदगी दी रात हो जाए, जिंदगी दा जो कमल है वो किधरे बंद हो जाए, इस विच फसन तो पहले असी अपने घर वापस आ जाइए, संसारक रसां दे विच ना फस के गुरु परमेश्वर दे नाम रस दे विच लीन हो जाइए। ऐसी दात गुरु साडी चोली विच पावे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।